गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत जी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वयं महाशिव के स्वरूप गुरु जी महाराज ने हमारे जीवन में पदार्पण किया है और हमारे जीवन को सदैव सही राह दिखा रहे हैं। गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना जो संगत जी सत्संग शेयर करते हैं उनका भी कल्याण होता है, और जो संगत परिवार सत्संग को पूरे भाव से सुनते हैं उनका भी कल्याण निश्चित रूप से होता है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1636। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत नूं जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाने तो बोल रही हाँ। मेरा ये दूजा सत्संग है। पहला सत्संग मैं 21 अप्रैल ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਰਜੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਅਰਸ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਸਟੇਅਰਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਟੇਅਰਸ 'ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ। 4-5 ਸਟੇਅਰਸ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਟ ਤਾਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਖੂਨ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਤਲਬ ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀ ਚੋਟ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਟ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 90% ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ 10% ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹੈ ਚੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚੋਟ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਪਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਰਜੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਰਾਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਪਕੜ ਲਓ ਵੀ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗਿਰ ਜੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਚਿਰਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਵੀ ਉਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਅਰਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਗਿਰੀ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਗਿਰ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਗਿਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਗਿਰੀ, ਮੰਮੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਡੋ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ।
ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1516। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती अभी। मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। उनके मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग है। मेरे यहाँ पर 2 दिन पहले लाइट चली गई थी आधी रात में। वो सिर्फ बाद में मुझे पता लगा कि सिर्फ मेरे ही घर की कोई खराबी है। और मेरे पास एक बच्चा भी है, मेरे घर में बूढ़े भी हैं, पति थोड़े बीमार चल रहे हैं अंकल जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था आधी रात को क्या करूं, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि हालत ख़राब हो रही है। तो कैसे अब इस हालत में मैं आराम दूँ अपने घर वालों को, कैसे? मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, मैं कहा गुरु जी कुछ भी करो मगर कोई मदद भेजो। मैंने बिजली घर के लोगों को फ़ोन किया, वो कॉल आधे में ही कट गई और मुझे लगा मेरी कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं हो पाई वो भी। पर इत्तेफाक की बात है उस वक़्त गुरु जी ने ही किया कि मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन आता है जो अननोन नंबर से था। मैंने फ़ोन उठाया तो वो फ़ोन उन्हीं बिजली के दफ्तर के घर वालों से निकला कि आपके यहाँ की कंप्लेन मिली है हमें, आपके यहाँ पे बिजली गई हुई है। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने शुक्र किया गुरु जी का। और उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि वो इतनी आधी रात में आ भी गए मदद करने, और इतना इंतज़ाम तो कर ही गए जितने में सब कुछ बिजली चल भी गई और सब कुछ ठीक भी कर गए कि बाकी काम आप अपने इलेक्ट्रिशियन से करा लेना, हम इतना कर जाते हैं कि ताकि आपको तकलीफ़ ना आए। ये सब गुरु जी के अलावा और किसी ने नहीं करा, कोई और नहीं करा सकता। और मैंने गुरु जी को यही कहा, मैं आपका शुक्राना करूँगी गुरु जी। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस वक़्त, वो आपका रूप ही बनकर आया है, या आप ही हो जो आप आए थे जिसने मेरी घर उस वक़्त मेरी बात रख ली, मेरी लाज रख ली, मेरे घर वालों का ध्यान रख लिया। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। आप जैसा कोई नहीं है। जय गुरु जी। और गुरु जी आज एक और छोटा सा शुक्राना ज़रूर करूँगी मैं अपने गुरु जी का। 3 महीने मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। जिस वक्त को मैंने काटा वो भी गुरु जी ने कटवाया, मैंने क्या काटा। और आज मेरे अंकल जी ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। इस बात का मैं बहुत 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 शुक्राना करूँगी मेरे गुरु जी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। और जितनी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो अरदास मेरी है, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर दीजिए। मेरा बेटा गुरु जी आपने संभालना है, मैंने सब आप पर छोड़ दिया, आपके नाती को। आप मेरा नहीं वो आपका है, प्लीज़ उसे संभालिए। आप सब समझ रहे हो मैं किस बारे में कह रही हूँ। गुरु जी आप संभालोगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैंने सब आप पे छोड़ दिया गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1969। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हेलो एवरीवन, हेलो सोनू अंकल जी। आज का सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जब से गुरुपा ज़िंदगी में है, ज़िंदगी एक रोशनदान बन चुकी है। मैं बहुत ही खुश हूँ उनके प्रेजेंस से,
मेरी ज़िंदगी में। मैं आज कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करूँगी। मेरे साथ अब तक जो भी हुए हैं, मुझे पता है जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मेरे हर एक कार्य में गुरुपा का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से हर काम अच्छा होता है। गुरुपा के आशीर्वाद से जो मिला वो भी अच्छा, जो नहीं मिला वो भी किसी अच्छे कार्य के लिए ही हो। गुरुपा का आशीर्वाद हो तो बस ज़िंदगी सफलता की ओर ही बढ़ेगी। वो हमेशा आपको अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं। गुरुपा हमेशा अपने बच्चों को हंसते खेलते देखना चाहते हैं। किसी की ज़िंदगी में वो कभी भी कोई रुआसी, कोई दुख, दर्द, पीड़ा वो नहीं चाहते कि रहे। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जिसमें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। बट मेरा यही एक मानना है जो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि बस गुरुपा पे विश्वास करें और आगे बढ़ते जाए। बस सिर्फ गुरुपा पे विश्वास करें और आगे बढ़ते जाए, उनका नाम ले बस और विश्वास रखें। वो कभी भी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। बस आज का सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ गुरुपा जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4312। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सुखविंदर आंटी अपना शुक्राना गुरु जी के आगे कर रही हूँ। मेरे को रोज़ ही मैसेज आते थे, बेटी शुक्राना कर, तेरे रुके हुए काम मैं बनाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तेरा शुक्राना हमेशा करती रहूँगी। आपने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए नया जीवन हमें ब्लेस किया है। आप गुरुपा, मेरे बच्चे के मन में थोड़ी सी दुविधा चल रही है कि मैं लंदन रहूँ या यहाँ रहूँ। गुरुपा प्लीज़ मेहर करो उस पर, जो भी उसके लिए बेस्ट एंड बेटर हो वो करो गुरुपा। हम खुद बहुत दुविधा में हैं क्योंकि हमारा बहुत पैसा भी लग गया, उस बच्चे का टाइम भी ख़राब हो रहा है, लेकिन उसको वहाँ काम ढंग से जो भी मिला हुआ है रेस्टोरेंट का वो करना नहीं चाह रहा। गुरुपा उसके मन को फेरो, बदलो ताकि वो वहीं रहे और अपना टाइम अच्छे से वहाँ पे थोड़ा सा जो भी बचाए करे। और फिर उसके बाद उसकी 4 साल बाद पीआर की फाइल लगेगी। तो गुरुपा हम तो यही चाहते हैं कि आपने अगर उनको भेजा है मेरे बच्चों को बाहर, तो आप ही उनके अंग संग सहाय हो, आप ही उन पे कृपा करो। मेरा छोटा बेटा भी कनाडा में है, उसके ऊपर भी मेहर करो। उसका स्टडी ख़त्म हो गई है और अब वर्क परमिट के लिए उसको जो भी है कागजी कार्रवाई स्टार्ट करवाओ गुरुपा। बस मेरे ऊपर आपकी बहुत दया है, मेहर है, कृपा है। मेरा पूरा परिवार आपके गुणगान गाता है। मेरे बच्चे भी बहुत गुरुपा आपके अजीज़ हैं और आपने हमें नया जीवन ब्लेस किया। और रोज़ आप मेरे को बोलते थे कि सत्संग कर, शुक्राना क्यों नहीं कर दी। तो गुरुपा आज जो भी आप बुला रहे हो मैं बोल रही हूँ। आपका लख कोटि धन्यवाद गुरुपा। और सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग शेयर करने के लिए। आपके ऊपर भी गुरुपा अपार कृपा करें। और आज का मेरा इतना ही शुक्राना सत्संग है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं इंदिरापुरम से इंदु सिन्हा बोल रही हूँ। संगत जी,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी संगत बन गई हूँ। मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। एक बार मैं मंदिर में बैठी थी तो मेरे कंधे पर आके तितली बैठ गई, बहुत सुंदर सी तितली। उसके बाद कोई बोला कि आपने तितली लगाया है, तो हम मुड़ के देखे तो नहीं, वो तितली उड़ के मेरे हार्ट पर आ गई, हार्ट के पास आ गई। और मेरा 2 महीना पहले हार्ट प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन मैं गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। और वो तितली को हाथ में लेके मेरी बेटी ने गमले में रख दिया। फिर 2 कबूतर मेरे दूसरे वाले कमरे में गद्दे पर आके बैठ जाते थे। दोनों कबूतर थोड़ा गंदगी करते थे, लेकिन दोनों बैठ जाते थे। ऐसा 1 सप्ताह तक हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की कृपा है मेरे ऊपर। बहुत बहुत कृपा है। आगे भी हम पर कृपा बनाए रखेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। गुरु जी सब पर कृपा बनाए रखते हैं। अब संगत जी मैं अब ख़त्म कर रही हूँ। अब पूरा कर रही हूँ। कुछ हमसे गलत हो गया हो, चाहे गलत बोल दिया हो, तो आप क्षमा करेंगे। आप लोग सब, गुरु जी भी क्षमा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5200। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। नमस्ते सोनू अंकल जी। गुरु जी के डिवाइन ग्रेस की वजह से आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि और संगत के साथ शेयर किया था कि मेरे बच्चे पे हॉस्टल में उसको काफ़ी बुरी संगत मिल गई थी। तो इस बार क्या हुआ कि पिछले 1 महीने से मैं हर ही हफ्ते अपने बेटे के स्कूल जा रही थी और बहुत सारी चीज़ें पता चली कि स्कूल की भी तरफ से कुछ चीज़ें सही नहीं थी और कोई नियंत्रण नहीं था, कंट्रोल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। और जब भी मैं स्कूल जाती थी या स्कूल से वापस आती थी तो मुझे 77 777 77 मतलब 3 गाड़ियाँ मेरे सामने होती थी और हर गाड़ी पे एक 777 दिखता था, ऐसे जैसे 777 बन जाता था। और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे बगल में बैठे हुए हैं बैक सीट में और वो मेरे साथ ही चल रहे हैं हर समय। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत ही मुश्किल होता है कि आपके स्पाउस का सपोर्ट नहीं मिले आपको इन सारी चीज़ों में और आपको ये सारे डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस अकेले करने पड़ते हैं। मेरा एक दोस्त है जो मुझे काफ़ी काउंसल करता था इस समय, तो उसकी बातें भी मुझे समझ में आती थी और मैं अपना डांडस बांध के जाती थी। बट गुरुजी ने इस मुश्किल से मेरे बच्चे को निकाला कि मतलब वो ऐसा काम किया था वो दूसरे बच्चे ने कि वो उसको तो स्कूल से बाहर ही निकाल देते। बट गुरुजी इतना सटीक मैसेज भेजता है सबके लिए कि मैं हमेशा सोचती रह रही हूँ, मेरी श्रद्धा गुरुजी के प्रति और बढ़ गई है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी ही अब मेरे बेटे की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा तो है ही नहीं। और ये सारी जो छोटी-छोटी इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं, गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस हमें हमेशा फ़ील कराते हैं। अभी भी मेरे डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स अभी शुरू ही होंगी 1 जुलाई के बाद। और मुझे लगता है कि गुरुजी जिस तरह से धीरे-धीरे करके प्रोग्रेस करा रहे हैं तो उसका निष्कर्ष भी ठीक ही जाएगा। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था यूट्यूब पे कि पुत्र तेरा काम
मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ क्योंकि ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा हो, तो चिंता ना कर। तो गुरुजी ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं और ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं गुरुजी से मैंने एक छोटी अरदास की हुई है क्योंकि अम, मेरे फ़ाइनेंशियल हेल्थ को लेकर के कि वो देखें और मेरे साथ-साथ उसमें भी रहें, मुझे ज़रूरत है उनकी। और मैं चाहती हूँ सोनू अंकल जी कि आप ये मैसेज उन तक पहुँचाएँ जिनको फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, जो सोच रहे हैं कि आगे वो क्या करना करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि गुरुजी हमेशा हम लोग को गाइड करेंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। आजकल की दुनिया ऐसी है कि दूसरों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। खुद ही धन अर्जित करना होता है और खुद ही अपना सहारा बनना होता है। लोग आते जाते रहते हैं, कुछ लोग साथ भी देते हैं, मगर गुरुजी के सहारे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपना सत्संग यहीं एंड करना चाहूँगी। सोनू अंकल जी, संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो अपना सत्संग सुनाने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सोनू अंकल जी, आपका चैनल बहुत अच्छा है। मुझे आपके मैसेजेस जब भी मिलते हैं तो बहुत पॉज़िटिव होते हैं। बाकी सारे चैनल से ऐसा लगता है मन हट गया है क्योंकि भले ही वो मैसेजेस एक तरह के गुरुजी से दे रहे हैं, मगर वो मन खट्टा कर देते हैं। और मुझे पता है गुरुजी की प्रेज़ेंस तो सिर्फ़ प्यार है और कुछ भी नहीं है। और मन मेरा आपके चैनल की बातें सुन कर के शांत होता है। आई लुक फॉरवर्ड कि आप अपना आप 3 बजे 7 बजे जो गुरुजी का सत्संग शेयर करते हैं। आजकल आजकल गुरुजी ने मुझे अमृत वेला सुनाई है और 2 बहुत ही अच्छे अमृत वेला के सत्संग सुने मैंने। एक तो हमें नाम जाप क्यों करना चाहिए और दूसरा है कि गुरुजी की आज्ञा में रहो। और इन दोनों ने सच पूछे तो मेरा नज़रिया ही बदल दिया है। और मैं गुरुजी का मन से शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने एक पिता की भांति मुझे स्टेबल बनाया है, इतना स्टेबल बनाया है कि मैं अब अपने बारे में सोच पा रही हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक जगह स्थगित हो गई हूँ, एक जगह स्टक हो गई हूँ। मैं गुरुजी के बारे में और क्या बोलूँ, सबको पता है संगत जी। आप मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, ना 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 ना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5213। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मिलियंस में शुक्राना गुरुजी, बिलियंस में शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की लाडली बेटी अपनी आइडेंटिटी अभी नहीं बताना चाहती। ये मेरा पहला सत्संग है जिसमें मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे साथ गुरुजी के कई सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। अचानक ना गुरुजी के मैसेज मेरे यूट्यूब पर आया करते थे, पर मैं उन्हें देख के इग्नोर कर दिया करती थी। मैं सोचती थी न जाने ये कौन है, क्या है, क्योंकि ना मैं कई दिनों से पूजा पाठ कर रही थी और मैं पूजा पाठ करते करते, ऐसा नहीं पूजा पाठ से मुझे लाभ नहीं था, पूजा पाठ करने से हमारे कई सारे संकट कट जाते हैं। पर धीरे धीरे ना लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि ऐसा लगता था कि पता नहीं भगवान मेरी सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो
गुरु जी के मैसेज मेरे पास आते रहते थे, हर कभी आते रहते थे, मैं इग्नोर कर देती थी कि नहीं सुनना है मुझे, मतलब नहीं देखना है मुझे। तो एक दिन ना शाम के टाइम मेरे सर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, तो अचानक से ना गुरु जी का मैसेज मेरे पास फ्लैश हुआ मेरे यूट्यूब पे कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तू ना 7 लौंग ले, उन्हें एक काले कपड़े में बांध कर अपने गले में पहन ले और 5 दिन बाद ना उस लौंग को जाके शिव जी के मंदिर में रखाना। और है ना, मैंने बिल्कुल जैसा उसमें था तो मैंने कहा करके देख लेते हैं, हो सकता है मेरे सर दर्द में आराम लग जाए। और वाकई में ना वो करने के बाद जैसे ही मैंने उसे पहना 1 घंटे में मेरे सर में आराम लग गया। आपका लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, बिलियंस में शुक्राना, मिलियंस में शुक्राना। मतलब उस जैसा सर दर्द उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, मैं टेंशन ले लेती हूँ तो थोड़ा बहुत सर दर्द, मुझे चक्कर ऐसा हो जाता है, पर उस दिन के बाद से जब से मैंने गुरुजी का वो उपाय करा है मुझे इतना आराम लग गया, इतना आराम लग गया। तो मैं गुरुजी का लख लख में तो नहीं, बिलियंस में शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरुजी के साथ जिस किसी की भी ब्लेसिंग्स जुड़ जाती है उस इंसान के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। इसके बाद मेरे साथ गुरुजी का एक एक्सपीरियंस और है। मेरे ना उल्टे पैर में मेरे पंजों के पास ना बहुत दर्द होता था, न जाने मुझे किस चीज़ की चोट लगी थी, मुझे तो ध्यान भी नहीं। तो उसमें ना बहुत बहुत दर्द रहता था, मैं ना चल भी नहीं पाती थी। मेरे बर्थडे का बेटे का बर्थडे था, तो ना घर में कई सारे मेहमान आए हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कैसे क्या करूँगी, मेरे पैर में इतना, तो मैं ना उसको बांधे बांधे काम कर रही थी। फिर ना उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे फ़ोन में ना मैसेज आता है कि कुड़िए तुझे शरीर में जहाँ भी दर्द है, तेरे मूंछ का दर्द है या जो भी दर्द है, तू ना घी में, गाय के घी में ना हल्दी मिला के और उसे अपनी दर्द वाली जगह पे लगा। और ना उसी दिन ना रात में मैंने जिस दिन गुरुजी का मैसेज देखा, मैंने ना हल्दी में फटाक से गाय का मेरे यहाँ घी नहीं था गाय का, तो मेरे यहाँ दूध आता था गाय का, तो मैंने उसका घी बना के फिर उसके अंदर हल्दी मिला के वो रात में लगा के सोई। और मैं गुरुजी की महिमा किस तरीके से गाऊं, वो दर्द मेरा कहाँ छू हो गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतने प्यारे हो गुरुजी। जो लोग बोलते हैं ना कि आप स्वीट हो, सच में गुरुजी आप बहुत बहुत स्वीट से भी ज़्यादा स्वीट हो आप। मेरे उस दर्द का मुझे आज तक पता नहीं, वो दर्द मेरा इतने अच्छे से गायब हो गया उसको लगाने के बाद। गुरुजी मिलियंस में शुक्राना गुरुजी, बिलियन बिलियन में शुक्राना गुरुजी, आपकी वजह से मेरे दो दर्द ठीक हो गए गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने मेरा तीसरा ये चमत्कार किया मेरी लाइफ में। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मैं कई दिनों से बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे काम ना बार बार अटक रहे थे। मेरे पति की लाइफ में कोई तरक्की नहीं हो रही थी। हम लोग ऐसा, मतलब हमें ना बहुत से लोगों ने बांध रखा था मेरे पति की और मेरी तरक्की को। और लेकिन जब से गुरुजी आए ना, धीरे धीरे रास्ते खुलते जा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से ना मेरे पति की सैलरी में इंक्रीज़ हुआ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मिलियंस में शुक्राना गुरुजी, बिलियंस में शुक्राना गुरुजी। आपकी वजह से मेरे पति अंकल की सैलरी जो बढ़ गई, उससे हमें बहुत सुकून है, क्योंकि हम लोग बहुत आर्थिक तंगी झेल रहे थे गुरुजी। लेकिन आपके आने से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं गुरुजी। आप नहीं जानते, जब से आप जुड़े हैं ना, बहुत सुकून सा आ गया है मेरी लाइफ में। मुझे लगता है कि हाँ कोई है जो मेरे साथ है, कि हाँ कोई है मेरी केयर करता है। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी कृपा कीजिए गुरुजी। अभी भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं। मेरी लाइफ को 3 साल हो गए हैं गुरुजी, जब से मेरी शादी हुई है। मैंने कोई सुख नहीं देखा गुरुजी, कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे कोई सुख मिला हो। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बहुत चाहते थे गुरुजी, लेकिन शादी के बाद ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने क्या मतलब मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, ना वो प्यार मिलता है, ना वो केयर मिलती है गुरुजी। मेरे ससुराल में मेरी सास है जो मेरे साथ रहना नहीं चाहती मुझे, और मेरे पति को ऐसे अकेले सा छोड़ दिया, ना हमें घर बनवा के दे रही है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं गुरुजी। और मेरे छोटे बच्चे के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर इतना तंत्र मंत्र करा के रखा हुआ है गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, प्लीज़ आके उस तंत्र मंत्र को काट दीजिए गुरुजी, आपकी कृपा से। जब तक वो तंत्र मंत्र नहीं कटेगा तब तक न जाने मेरे पति अंकल की बुद्धि कैसी रहेगी गुरुजी, आपकी कृपा से। अभी वो थोड़ा ठीक है, अभी कुछ दिनों से वो थोड़ा सच में मुझसे अच्छे से बोल रहे हैं गुरुजी। उनकी माँ ने न जाने उन्हें क्या क्या खिला पिला के ऐसा कर दिया है कि मैं उनसे कुछ भी कहती हूँ तो सुनते नहीं हैं गुरुजी। मेरी मदर इन लॉ को सद्बुद्धि दीजिए, जो वो ये गलत काम कर रही हैं, तंत्र मंत्र कर रही हैं, इसका उन्हीं पे एक दिन बुरा असर होना है। मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, उन्हीं पर भरोसा करती हूँ। मैं इन सब चीज़ों को ये सोचिए कि जिसने जो कर्म करा उसको वो भुगतना पड़ेगा। वो शायद आज मेरी लाइफ में भी जो इतना कष्ट आ रहा है, इतना दुख आ रहा है, जो मुझे
मुझे ससुराल से भी सुख नहीं है, मायके से भी सुख नहीं है, मैं इतना भुगत रही हूँ, दोनों जगह से कोई मुझे नहीं समझा। तो शायद ही मेरे पिछले जन्म के कर्म है जो गुरुपा आ गए इनको कटवाने के लिए। गुरुपा आप आ गए हो तो अब मुझे पता, हंसते हंसते ही सारे कष्ट कट जाएंगे। गुरुपा हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। गुरुपा मुझसे जो कोई गलती हो जाए क्षमा कर देना। गुरुपा ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं, बस आपने कहा था कि कुड़िए तू सत्संग शेयर कर, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंत अनंतम, गुरुजी विलियन शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा ना गुरुजी ने मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे मिरेकल्स करे। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि कौन लोग हैं जो मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल कर रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे कार्य बंधे हुए। गुरुजी ने ना मुझे सपने में उन लोगों के चेहरे दिखाए। मुझे डाउट तो उन लोगों पे पहले ही था, लेकिन सत्संग सुन सुन के मुझे क्लियर हो गया कि हाँ, मैं ना अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ना यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उनको कई बार देखा भी कि हाँ वो कुछ मिलाती हैं खाने में, कि मतलब, पर मैं सोचती थी शायद वो अच्छी चीज़ें करती होंगी। पर और जब जब उन्होंने मेरे साथ, मेरा बेटा हुआ, बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया मेरे साथ। मुझे बहुत बहुत मतलब मुझे मैं ये सोचती थी कि नहीं, शायद ये मुझसे नफ़रत करती हैं, पर ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी। पर उन्होंने बहुत गलत चीज़ की है, बहुत तंत्र मंत्र करवा रही हैं, अभी भी करवाए जा रही हैं। मेरा बच्चा लगातार बीमार रहता है। मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है, उसको 2 साल में वो 5 बार अस्पताल में एडमिट हो गया है गुरुजी। जब भी उसका बर्थडे आता है, कुछ जब भी उसका बर्थडे आता है गुरुजी, न जाने उसके ऊपर क्या करा देते। मेरे बच्चे का जन्मदिन नहीं मर पाता गुरुजी, वो हमेशा बीमार रहता। गुरुजी कृपा करो गुरुपा, ऐसे लोग जो हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, जो भी हम पे तंत्र मंत्र कर रहे हैं, सब वापस कर दो गुरुपा। हम ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो गुरुपा, कि वो उनकी बुद्धि सुधर जाए और वो भी अपने जीवन में तरक्की करें। गुरुजी आपकी कृपा रही तो सब अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ गुरुजी के सहारे हूँ। मेरी जितनी भी संगत है, जितनी भी प्यारी संगत है गुरुपा की, मेरी सबसे ये अरदास है कि गुरुजी के सत्संग सुना कीजिए। गुरुजी के सत्संग सुनने से हमारे न जाने कितने कष्ट कट जाते हैं। और ये बात सच है गुरुजी, अभी ना कुछ 2 मई को मेरे ना पति का बर्थडे था। 2 मई की बात है, यही 2 मई 2025 की मेरे पति का ना बर्थडे था। उस दिन वो सुबह से ना बहुत नाराज़ थे। मैंने बताया ना कि मेरी मेरी मदर इन लॉ ने उन पर तो न जाने क्या क्या करा के रखा, जिस वजह से वो ना मुझसे सीधे से बात करते हैं। मेरे मायके वालों को भी ना इतना वो मेरे मायके वाले उनके लिए तो बहुत करते, भले ही वो मुझसे चिढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि हमने लव मैरिज की है, तो वो नाराज़ रहते हैं कि थोड़ा सा, पर वो फिर भी ठीक तरीके से व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन मेरे पति अंकल से तो बहुत अच्छे से, लेकिन मेरे पति अंकल उनके द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार को नहीं मानते, बस ऊपरी दिखावा करते हैं। तो उन लोग ना क्या बोलते हैं, मेरे पति अंकल का 2 तारीख को जन्मदिन था। हम लोगों ने घर में नहीं मनाया। मेरे पति अंकल ऑफिस चले गए, ना हमारे साथ कहीं गए ना कुछ। मैंने उनसे खाने का पूछा तो उन्होंने खाने के लिए भी कोई मुझे जवाब नहीं दिया। बोले जो बनाना है बना लो। मतलब हर बार मेरा दिल दुखाना, हर बार मुझे उस तरीके से ना बोलना। एक होता है ना, कोई शारीरिक चोट देता है, पर मेरे गुरु अंकल, मेरे पति अंकल जो मुझे मानसिक चोट देते हैं। तो गुरुपा मेरी आपसे अरदास है कि मेरे पति अंकल को बुद्धि दो, कि वो जो ये मानसिक चोटें मुझे देती, मेरा छोटा सा बच्चा है गुरुपा, मुझे उसको बहुत अच्छे संस्कार देना। जब मैं ही अच्छे से नहीं रहूँगी, मेरे ही दिमाग काम नहीं करेगा, तो मैं कैसे उसे अच्छे संस्कार दूंगी। मेरी अरदास है गुरुजी, मेरे गुरु अंकल को सद्बुद्धि दो गुरुपा मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दो। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ना उस दिन मैं बहुत परेशान थी, सुबह से दुखी थी, मेरा मन बहुत उदास था। गुरुजी के सत्संग भी सुनती जा रही थी। अचानक से ना क्या बोलते, मेरे भाई और मेरे मम्मी जी आए केक लेके मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे मनाने। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही उन्होंने केक का ढक्कन खोला ना, उसमें ना बटरफ्लाई बनी हुई थी। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे गुरुपा साक्षात मेरे घर आए। आज तक इतने केक आए, किसी में भी बटरफ्लाई नहीं थी, उसमें साक्षात बटरफ्लाई रूप में मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। इसके पहले भी मुझे कभी कभी ना, जो मैं फ़ोन चलाती थी उसमें हर कहीं किसी के भी चेहरे में मुझे गुरुपा दिखते थे, न जाने किन किन रूपों में। एक दिन ना मैं किचन में चाय बना रही थी और मैं बहुत उदास थी। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा मुझे अभी के अभी दर्शन दो। उस दिन ना वो कॉलोनी में एक भी कबूतर नहीं था, वो न जाने मैंने इधर उधर देखा तो गुरुपा मुझे कबूतर धूप में दिखाई दिए, दाना चुगते हुए। तो मैं अपने गुरुजी का अनंत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, जब भी आप सच्चे दिल से याद करते हो तो गुरुपा आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस और है गुरुजी के साथ। अभी कुछ दिन पहले ना मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं ना दलिया बना रही थी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। उसी टाइम ना मैं गुरुपा का सत्संग सुन रही थी। तब उसी टाइम, बिल्कुल उसी समय जब मैं दलिया बीन रही थी, तो एक आंटी जी ने ना सत्संग शेयर किया कि ना गुरुजी ने उनसे कहा है कि मेरा ना दलिया खाना का मन होना है, कुड़ी तू दलिया बना। और मैंने भोग लगा। उसी टाइम में ना दलिया बना रही थी। संगत जी, गुरुजी, मैं उस टाइम ना बीमार थी, मेरी नहाने की इच्छा नहीं थी, मेरे शरीर में हल्की सी कपकपी थी। पर जैसे ही
मैंने वो सत्संग सुना तो मैं समझ गई कि हाँ आज गुरुजी का दलिया खाने का मन है। मैं तुरंत गई, न जाने मेरे शरीर में कहाँ से वो शक्ति आ गई। मैंने नहाया और नहाने के बाद फिर मैंने वो दलिया बनाया और वो दलिया इतना स्वाद बना था, इतना स्वाद। मैंने उस दलिए का वो गुरुपा को भी लगाया और फिर मैंने और मेरे बेटे ने उस दलिए को खाया। अनंतर शुक्राना गुरुजी, इस तरह बात करने के लिए, टेलीपैथी में बात करने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए, अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। बस गुरुजी अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स मुझे देती रहना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ। गुरुजी के चमत्कार तो और भी हैं, मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। जैसे जैसे गुरुपा करवाएंगे, जैसे जैसे गुरुपा बुलवाएंगे, सब गुरुजी की मर्जी से होता है। गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। गुरुजी मेरा पहला सत्संग था, तब गुरुजी मुझसे ये पहला सत्संग शेयर करवाने के लिए धन्यवाद गुरुपा, अनंतन कोटि धन्यवाद गुरुपा, अनंतन कोटि शुक्राना गुरुजी, मिलियंस में शुक्राना जी गुरुजी, बिलियंस में शुक्राना जी, लख लख भारी शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी दी बेटी गुरु जी दे चरनां विच बैठ के शुक्राना करदी हां। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी, शुकराना शुकराना। ये मैं शुकराना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल ते शेयर करदी हां। सोनू अंकल जी तुहाडा बहुत बहुत शुकराना शुकराना कि तुसी मेरे सत्संग शेयर करदे गुरु महाराज जी के चरनां विच पहुँचाउने आ। शुकराना शुकराना गुरु महाराज जी दा मोदी मैं आ जांदा टैलीपैथी के बेटी तेरा शुकराना मैनू मिल गया। तो शुकराना शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡਾ मैं पल पल ਦਾ शुकराना करदी ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। शुकराना गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुकराना शुकराना। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੁਲਾਓਗੇ मैं ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुकराना शुकराना। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ शुकराना ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुकराना 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 गुरु जी। ਤੁਸੀਂ हर पल ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। शुकराना गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ शुकराना, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ शुकराना ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਵੀ शुकराना शुकराना ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुकराना शुकराना ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। संगत जी ये शुकराना सत्संग मैं अपनी मम्मी वालों करदी हाँ। संगत जी जदों गुरु महाराज जी ने अपने नाल जोड़िया सीगा 2024 दे विच, ते उदों थोड़े चिर बाद गुरु महाराज जी दा मैसेज आया कि बेटी तू बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी उदों तो आपां USA च रहिंदे आ, उदों कोई प्लैनिंग भी नहीं सीगी कि आपां मतलब ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੜੇ ਮੰਦਰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ ਦੋਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ गुरु महाराज जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7883। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पुष्पा गोरखपुर गोरखनाथ से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। साथ संगत जी जय गुरु जी। सोनू भाई जी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बड़ाइयाँ बखान और गुणगान लेके आई हूँ। संगत जी भूल चूक हो क्षमा करिएगा। मैं मंदिर में बैठी हूँ और गुरु जी के सामने आज रविवार है और 5:17 हो रहे हैं। मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ अमृत वेले और मैं सब देवी देवताओं को नमन करती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जो तहे दिल से मैं गुरुपा की बेटी नमन करती है और शुक्राना करती है। परिवार की तरफ से चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। सदैव ध्यान में रखना गुरुपा, अपना हाथ सदैव सबके सिर पर रखना। गुरु जी आपकी बड़ाइयाँ हैं, आपकी कृपा है, आपको सदैव ब्लेसिंग है और सब पर, सब पूरे प्यारी गुरु संगत पर अपनी दया कृपा बनाए रखना गुरु जी। और सोनू भाई के परिवार पर सदैव ब्लेसिंग बनाए रखना और कल्याण करना, जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके इस कार्य को सराहनीय है और मैं नमन करती हूँ। गुरु जी महाराज आपके चरणों में सदैव नमन है। और संगत जी बहुत जो भी भूल जाए माफ़ करिएगा। और मैं गुरुपा की बेटी इतने भाव से प्यार से मैं गुरुपा की बड़ाइयाँ लेके आती हूँ। जो संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा है और मैं सत्संग गुरु जी की कृपा से करती हूँ, नहीं तो मेरे कहाँ इतनी क्षमता औकात की मैं गुरुपा का शुक्राना कर पाऊँ। जो गुरु जी महाराज मुझे अमृत वेले उठाते हैं इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी बहुत नींद में सोने के बाद भी गुरुपा की उठाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे कह रहा है उठो और मैं इतनी नींद में सोई रहती हूँ। संगत जी माफ़ कीजिएगा। और जैसे लगता है कोई उठा रहा है और मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है कि जैसे मेरी आँख के सामने लाइट चल रहा हो और मैं उठती हूँ। जैसे लगता है मुझे किसी चीज़ की तलाश है और उठ जाती हूँ और उठती हूँ, टाइम देखती हूँ तो 3:15 4:15 यही होते रहते हैं संगत जी। और मतलब ऐसे मेरे गुरु जी ही तो उठा सकते हैं ना संगत जी। मेरे गुरुपा कितने प्यारे हैं, इतने कर्म मेरे काटते हैं और नहीं तो संगत जी कौन उठाता है। मेरे गुरु जी इतनी मतलब अंदर हम लोग कितने भाग वाले हैं कि गुरुपा उठाते हैं और हम लोग के हमारे कर्म काटते हैं संगत जी। संगत जी मेरे गुरु जी बहुत कृपा करते हैं, क्षमा करिएगा गुरु जी। संगत जी तो मेरे गुरुपा इतनी बड़ाइयाँ बखान करती है ना संगत जी, वो बड़ाइयाँ क्या है मेरे गुरुपा की, कुछ नहीं है। और हम लोग के नसीब में गुरु जी महाराज हैं तो इससे हम लोग के कर्म और खुशियाँ दोनों बहुत हैं। कर्म तो गुरुपा ने काट ही दिए हम लोगों के जोड़ के। तो मैं शायद मैं उस शब्द को नहीं बोल पा रही हूँ जो गुरु जी को बोलना चाहिए। और मैं गुरुपा की मैं संगत जी क्या बताऊँ, 4 लाइन मेरे सामने है। पुत्र तेरा मन बिना वजह ही घबरा रहा है, तेरी लाइफ में तुम्हें मैंने इतनी खुशियाँ लिखी हैं कि जितनी तूने सोची भी नहीं। मन को शांत करने के लिए शुक्राना किया कर, घबराया ना कर। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। तेरा नसीब जो थम गया था उसे मैंने फिर से चलाया है। 7 जुलाई को तेरे जीवन में ब्लेसिंग आएगी, अब पहचान लेना और शुक्राना ज़रूर करना। तूने बड़ा कष्ट का सहा है, सबने तुझे खूब रुलाया है। अब अपने आशीर्वाद की कलम से तकदीर बदल दूंगा। झोलियाँ फैला कर रखना पुत्र, आ रहा हूँ मैं सबकी झोलियाँ भरने। आँखें बंद करके तुम्हें महसूस करने के सिवा मेरे पास तुमसे मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। सच में संगत जी गुरु जी महाराज बहुत जो पहले थोड़ी थोड़ी बातों पर आदमी सब परेशान हो जाती थी और चिंता में रहती थी, वो सब गुरुपा ने शांत कर रखा है। तो गुरु जी महाराज मन की बातों को
इतना पूरा करते हैं संगत जी, तो कहने की ही क्या ज़रूरत है। तो संगत जी आप सब बहुत प्यारे हो, और जो गुरु जी की कृपा है संगत जी बहुत है, गुरुपा की कृपा। आप सब बहुत भाग वाले हो कि जो गुरु जी के मंदिर जाते हो और वहाँ रहते हो संगत जी, आप सबकी बहुत कृपा है। हम सब भी तो दूर नहीं हैं, लेकिन ये है कि अगर हम लोग वहाँ जाते तो गुरुपा के मंदिर में, तो संगत जी आज तक तो डुगरी मंदिर जाने की या बड़े मंदिर गुरुपा की नसीब नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन होगा गुरुपा की कृपा होगी उस दिन ज़रूर जाएंगे मंदिर। और गुरुपा की जो देखती हूँ मंदिर, तो संगत जी सत्संग में सुनती भी हूँ कि जो मंदिर के दर्शन किए वो वहाँ पहुँच गए, उनके चरणों के दर्शन किए तो चरण आ गए आपके घर में। तो बहुत नसीब वाले हम लोग हैं जो गुरुपा की इतनी बड़ाइयाँ बखान है और गुरुपा का आशीर्वाद है। बोलते हैं मैसेज द्वारा कि तू परेशान ना हुआ कर, नहीं आ पाई तो क्या हुआ, मैं तेरे यहाँ आ रहा तेरा आशीर्वाद देने। तो ऐसे ही मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, इस प्रसाद को, इस जल को तू देख और शुक्राना कर। तो मैं संगत जी सब बहुत प्यारे मेरे गुरु जी हैं कि मेरे गुरु जी इतनी आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग रखे हैं। मैं शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उन्हें भी बहुत ब्लेसिंग दिया गुरुपा ने, दिए हैं और दे भी रहे हैं संगत जी। कार्य में बरकत और सदैव उनके सब दुखों को दूर किए और मन को शांत किया। शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जो इतनी भीषण गर्मी है संगत जी, इसमें कोई कहीं जाए और काम हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है गुरु की। गुरु जी महाराज बहुत बहुत साथ देते हैं संगत जी, हम मन को सुकून देते हैं। मैं शब्द तो नहीं है कि जो गुरुपा की मैं बड़ाइयाँ बखान कर पाऊँ, लेकिन संगत जी जो मन में आता है वही मैं बोल रही हूँ। और गुरु जी महाराज के सामने मैं शुक्राना करती हूँ, बेटे की तरफ से शुक्राना है, उसे भी नीवा बनाने का। और संगत जी वाणी पे संयम रखे और गुरुपा की कृपा से, उसके आशीर्वाद से गुरुपा की उसे सदैव ब्लेसिंग मिले और कार्य में मन लगा रहे और उसका कार्य पूरा हो। शुक्राना करती हूँ। कभी कोई कहता है मम्मी तुम क्या करती हो, मेरे लिए ये नहीं कहती है, मेरे लिए वो नहीं कहती है, सुनती नहीं है। मैं हम अब क्या बोले संगत जी, हमेशा हमेशा यही कहता है। तो मैं गुरुपा पे छोड़ देती हूँ कि गुरु जी महाराज आप देख लो कि वो क्या कहता है। तो गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से शुक्राना, उसे भी ताकत देने का और सारे दुखों को दूर करने का, हेल्प ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से खूब बड़ा वाला शुक्राना गुरु जी। जो गुरु जी महाराज मुझे ज़िंदगी में सिर्फ बहार दिए, गुरुपा ने खुशियाँ दी, शांति दी, मन में भाव दिए, प्यार दिया गुरुपा ने। संगत जी मेरे गुरु जी ने बहुत 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 आशीर्वाद दिया और गुरुपा की कृपा से मेरा घर क्या है संगत जी, मेरे गुरु जी ने का घर है। मेरे गुरु जी मेरे घर में विराजमान हैं संगत जी। मेरे मंदिर में पंखे नहीं हैं तो मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरुपा मुझे बहुत तकलीफ़ होता है कि आपको मंदिर में रखा है, यहाँ पे मैं पंखा लगवाऊँ आपके सामने जो आपको हवा लगे। और संगत जी जब मैं नहीं बैठ पा रही हूँ तो गुरुपा के सामने, तो गुरु जी कितनी गर्मी लग रही होगी। तो मैंने कहा कि गुरु जी यहाँ पंखा छोटा सा आपके सामने लगवाऊँगी और गुरुपा को तब ठीक लगेगा। मैं घर में कहती भी हूँ संगत जी जिस दिन गुरुपा की कृपा हो जाएगी मैं यहाँ लगवा दूँगी। रूप में तो नहीं गुरु जी को रखी हूँ, मन गुरुपा की जैसी कृपा होगी। और संगत जी जब सत्संग हो रहा था तो मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैंने पंखे छोटे से जो होते हैं कागज़ के तो उतारी अपने लिए ली संगत जी। उस समय मेरे दिमाग में ये आया, पता नहीं कैसे कि मैं उतार तो अपने लिए रही थी, लेकिन मैंने गुरु जी को ही पंखे किए और बहुत देर तक पंखे किए। बहुत अच्छा लगा, जैसे लग रहा था मुझे नहीं गर्मी हो रहा है, वो गुरुपा को हो रही थी। तो मैं उठाई और उन्हीं को की। फिर मेरी बेटी आई, वो भी थोड़ी देर की। तो मैंने कहा तुम गुरु जी को ऐसे करो पंखे, जैसे गुरुपा को गर्मी लग रही होगी। तो उसने कहा कि मम्मी जब भी मैं आती हूँ पूजा में प्रसाद रखने, जल रखने, चाय रखने या कुछ भी, तो मैं गुरु जी को थोड़ी देर पंखे करती हूँ। तो मैं शुक्राना करती हूँ कितनी भाव देने के लिए गुरुपा। शुक्राना जब जल्द से जल्द मैं गुरुपा को कोशिश में हूँ
के पंखा यहाँ लगवाऊँ। मेरे गुरु जी सजय साक्षात हैं और मेरे अंदर में इतना भाव होता है संगत जी ना कि गुरु जी महाराज मेरे अंग संग सदैव रहते हैं। गुरुपा की कृपा से बहुत कुछ संभव है, मेरे घर में होता भी है और मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। इतना अच्छा घर देने का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, इतना अच्छा बेटी बेटा देने का शुक्राना। गुरुपा की कृपा होगी तो गुरु जी महाराज उन सबों की शादी जल्दी कराएंगे। बेटी की तो नहीं जल्दी है संगत जी, लेकिन गुरु जी कृपा इन्हीं के हाथ में सब बागडोर दिया हुआ है। गुरु जी जब चाहेंगे तब होगा। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा के भाव से प्यार से, और मैं अगला सत्संग फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुरुपा अपना ख्याल रखिएगा। हाँ संगत जी, मन में पहले यही था कि जो ये हादसा हुआ है, मैं गुरुपा के सामने कह रही हूँ संगत जी, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ संगत जी, ये हादसा दिल को छू जाने वाली हादसा है। और उन जिन लोगों के साथ ही हुआ उनको गुरुपा अपने चरणों में स्थान देना, गुरुपा और उनके परिवार को शक्ति देना। और क्या कह सकती हूँ संगत जी, बहुत 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 कष्ट होता है संगत जी सब चीज़ें सुनकर। और गुरुपा उस हादसे को भूलना, प्लेन क्रैश बहुत दुखदाई। मैं बता नहीं पा रही हूँ संगत जी कि मैं किन शब्दों में इस शब्द को बोल रही हूँ जो बहुत दुखदाई है। और हर क्षण दिमाग पर जैसे मोबाइल में आ रहे हैं, और जिन तरह से उन लोगों को देखा है मैं कह नहीं सकती हूँ। 1-2 वीडियोस देखा और मन को बहुत देर तक झकझोरा। शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप उन लोगों को सबको शक्ति देना। वो परिवार जो चला गया, जिसके घर का गया, उन्हें शक्ति देना गुरुपा, और अपने चरणों कमल में स्थान देना। शुक्राना करती हूँ गुरुपा, शुक्राना। मन को शांत करने का शुक्राना, प्यार भाव देने का शुक्राना, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना है। गुरु जी महाराज आपके चरणों में आपकी बेटी तहे दिल से प्रणाम करती है, शुक्राना करती हूँ। जो भी भूल चूक हो जाए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, सदैव क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। और साथ संगत जी जय गुरु जी, सुनो भाई जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना, कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7927। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद शुरू किया है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कैसे लिखूं और कैसे करूं शुक्राना। गुरु जी मुझे माफ़ करेंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं नहीं जानती कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ। जैसे वो कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी शुरू करो, पर मैं अपने भाई की बेटी और उनके दामाद की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे गुरु जी से और संगत से जोड़ा है। तो मेरा शुक्राना सत्संग है छोटा सा कि मेरी बेटी को वीज़े की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े नए रूल बना दिए और वो वहाँ कई सालों से नौकरी करती थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, जो कि वीज़े की डेट नहीं आ रही थी, कि गुरुजी इसको वीज़े की डेट दे दीजिए। अगर ये यहीं लंबी छुट्टी पे रही तो फिर इसकी नौकरी कैंसिल हो जाएगी। और शुक्र गुरुजी का कि उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही उसको वीज़े की डेट दे दी और सारा काम खुशी खुशी संपन्न हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और संगत जी और गुरु जी, मुझसे शुक्राना करने में देरी हुई और जो भी भूल और गलतियाँ हुई आप सब उनको माफ़ कीजिएगा और मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं बारंबार गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर सकूं। सबका धन्यवाद। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, आप अपनी कृपा हमेशा मेरे और मेरे बच्चों और मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।